अग्निवीर वाला मैटर, Lordship wala. the criteria. The criteria is, Lordship, the candidate should contain at least 45% marks. Is that advertisement? कौन सा सब्जेक्ट लिखा है आपने? लॉर्डशिप इसमें 45% in aggregate of 5 basic subjects. Basic What are the 5 basic सब्जेक्ट है लॉर्डशिप, 5 सब्जेक्ट। Let me अरे complete. एक बताने दो ना। 3 subjects are the compulsory subjects as per the guideline of the बोर्ड में CBSE. तो मैम 10th बोर्ड में तो सब्जेक्ट्स आर इवन कॉमन इन ऑल दिस। मतलब इसमें आपको ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए? कंपलसरी में अगर हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके +2 लैंग्वेजेस एनी ऑफ। ये कहाँ लिखा आपने? ये चीज बताइए ना। अग्निवीर जनरल में आपने लिखा है 45% इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट्स। अग्निवीर डन बाय द आर्मी है ना, तो यू विल हैव टू गो थ्रू द आर्मी रूल्स। क्या है? These are the compulsory subject which is to be taken. तो कहाँ है बताइए ना, कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट है बताइए। And 45 मैं आप जो पूछ रहा हूँ या तो फिर तुम लिखवा लो यहाँ के। लॉर्डशिप सॉरी। the candidate व्हाट वाज द मैटर? लॉर्डशिप इसमें ये है कि इसके जो मार्क्स है लॉर्डशिप 45% का, वो जीडी उसके लिए सर क्वालिफाई था। हाँ। इनका वो परसेंटेज कम बता रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। यस, Yes, my lordship. The अग्निवीर वाला मैटर। Lordship. Yes. He is not coming under the category of the criteria, my lord. What is the criteria? The criteria is, Lordship, the candidate should contain at least 45% marks in the class 10th. वो तो उन्होंने बताया ना 45। My lord, as per the Board of Secondary Education, the candidate has not taken the compulsory subjects in the calculation. कहाँ? Where is the advertisement which mandates this? My lord, these are the circular. नहीं, where is that advertisement? क्यों उसमें है? आपने कहीं लगाया एडवर्टाइजमेंट? लॉर्डशिप इसमें मैंने मार्कशीट लगाई और उसमें इनका एक पैरा फर्स्ट इसमें लॉर्डशिप के 45% होना चाहिए आउट ऑफ 500। एक मिनट रुको, where is that advertisement? My lord, the advertisement. पेज नंबर 9 लॉर्डशिप एंड एक्सेप्ट P1। लॉर्डशिप। अब मैडम P1 से बताइए कि कहाँ है, which is that condition which you My lord. are reading now? My lord, if you let's see the education qualification, the class 10. कहाँ पर? अग्निवीर। अग्निवीर लॉर्डशिप। Agnivir A. हाँ। Class 10th public metric pass with 45 marks in aggregated of 5 अग्निवीर basic टेक्निकल subjects. पढ़ रहे हैं ना कि अग्निवीर जनरल? लॉर्डशिप अग्निवीर जनरल वाली लॉर्डशिप। क्लास 10th पब्लिक Oblique मैट्रिक पास। matrix pass with 45% in the aggregated of 5 basic subjects and minimum 33 marks in each of those 5 subjects for board following grading systems, grades. नहीं, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट लिखा है आपने? लॉर्डशिप इसमें 45% in aggregate of 5 basic subjects. What are the 5 basic सब्जेक्ट है लॉर्डशिप, 5 सब्जेक्ट। And let me अरे complete. एक बताने दो ना। हाँ, what are the basic 5 In subjects? basic subjects, these 3 subjects are the compulsory subjects as per the guideline of the बोर्ड में तो CBSE. मैम 10th बोर्ड में तो सब्जेक्ट्स आर इवन कॉमन इन ऑल दिस। मतलब 3 are the basic subjects of the language. And these, if your lordship see, 3 कोई भी सब्जेक्ट लैंग्वेज के ले सकते हैं and 3 subjects are the mandatory subjects which are the compulsory कहाँ subjects. लिखा आपके एडवर्टाइजमेंट में? In the advertisement we have mentioned the basic subjects. नहीं, बेसिक सब्जेक्ट एक कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा what is your basic subject and been defined in anywhere in your But it is not advertisement? mentioned any subject also, my lord. नहीं, इसमें- During the filing of their 33% marks in each of those 5 subjects. Those 5 subjects. Those means you have defined those 5 subjects. But as per the guideline of this MP board also, they are the 3 mandatory subjects, the compulsory इसमें subjects. कहाँ which ये are- क्या है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है ये? इसमें मतलब if you see the compulsory subjects are 3, which is maths, mathematics, science and social science. These are the 3 compulsory subjects. तो इसमें आपको ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स चाहिए? कंपलसरी में अगर हम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके +2 लैंग्वेजेस एनी ऑफ। ये कहाँ लिखा आपने? ये चीज बताइए ना। अग्निवीर जनरल में आपने लिखा है 45% in aggregate of 5 basic subjects and minimum 33% in each of those 5 subjects. मतलब क्या हुआ? ये 5 basic 5 subjects होने चाहिए, 45% aggregate होना चाहिए and each subject should not be less than 33% minimum. तो अब इसमें से मेरे को 5 बता दीजिए कौन से बेसिक सब्जेक्ट है which has been defined in your advertisement or in your recruitment rules. But as per ऐसा the नहीं। notification of these ये MP board से थोड़ी, this is not a selection by the MP board. Yes. This is selection of Agnivir done by the army. है ना, तो you will have to go through the army rules. क्या है? these are the compulsory subject which is to be taken. तो कहाँ है बताइए ना, कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट है बताइए। And second submission ये is कंपल्सरी सब्जेक्ट मींस उसमें 5 सब्जेक्ट बोला है बेसिक,
ये बता दीजिए व्हाट आर दोस बेसिक सब्जेक्ट्स। This particular अगर आप मान लो ये 10th बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहती हो अग्निवीर में, Madam. व्हाट आर द 5 बेसिक सब्जेक्ट्स व्हिच यू कंसीडर इट फॉर 45% होना चाहिए? व्हाट आर कहाँ लिखा है बेसिक सब्जेक्ट्स? इसमें कहीं है? ये जो आपने दिया है इसमें तो कंपल्सरी सब्जेक्ट दिया है, बेसिक कहाँ है? In these basic subjects, these 3 compulsory subjects will be counted. अरे बेसिक सब्जेक्ट क्या होते हैं? This has not been elaborated. Yes, then you will have to take that person And is having 45%. आपके कितने? Madam, one more. एक मिनट। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 लॉटशिप उसमें कौन कौन से हैं? 45%। 5? एक मिनट बताइए। लॉटशिप इसमें नेक्स्ट मैंने मार्कशीट फाइल की है। अरे आप बताइए तो एक subject- नंबर Submission I would like to एक मिनट submit. जाना। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? 5 कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? पूरे कंप्लीट है लॉटशिप और वैसे 33 अरे आपसे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं आप। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स और साइंस, इसमें सभी में हिंदी, कंप्लीट एक मिनट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स, साइंस, जी, इनको कंप्लीट टोटल करके ये 5 होते हैं, है ना? लॉटशिप। ये 5 होते हैं। जी, तो इस 5 में से आपका हर एक पांचों सब्जेक्ट 45 आ रहा है लॉटशिप। इनका एग्रीगेट भी अगर देखा जाए 45 मैं आप जो पूछ रहा हूँ या तो फिर तुम लिखवा लो यहाँ के। लॉटशिप, सॉरी। हैं? जी, यू एक्ट टू स्मार्ट। जब आपसे पूछ रहे हैं कि ये पूरे सब्जेक्ट मिला के 45% है क्या? लॉटशिप। ठीक है। अब इनका कहना है कि ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट में अबाउ 33 होना चाहिए, नॉट बिलो 33। तो आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में जो 33% मार्क्स लॉटशिप है ना? यस। तो अब बताइए मैम इसमें क्या क्या Sir, करा रही है? इसमें जो we have taken a social science which is a compulsory subject. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं especially ये सोशल साइंस था कि इनके इसमें ये social science is there, my lord. If your lordship will नहीं see, आपके उसमें मार्कशीट में देखना सोशल साइंस है क्या? लॉटशिप है, सोशल साइंस तो है है। लॉटशिप, पर उसमें 3 है. एक मिनट रुको। तो उसको क्यों नहीं पढ़ा फिर आपने? लॉटशिप इसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट इन्होंने ये करा। और बेसिक सब्जेक्ट में मतलब कैसे अच्छा ये इनका ये सबसे एग्रीगेट 45 5 सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट कहीं डिफाइंड है क्या? नो लॉटशिप। तो फिर आपको 5 जब मैंने सब्जेक्ट पूछा कि बोला है आपने कि कौन कौन से 45 होना सब्जेक्ट है, तो चाहिए। आपने ये क्यों छोड़ा सोशल साइंस? नहीं सर, लॉटशिप अगर सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट है अगर वो करे तो 33% तो फिर भी मेरा हो रहा है। एक मिनट रुकना। आपके इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है क्या 10th? नो लॉटशिप, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। लॉटशिप। ठीक है ना? अब आपका ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जितने हैं उसमें सब 33% है। लॉटशिप वो है, लॉटशिप सभी में है पूरा। ठीक है ना? सर इसमें ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म इनका एक फॉर्म होता है जिसमें वी यूज टू मेंशन कि फिल अप द एवरी सब्जेक्ट्स. तो उस एवरी सब्जेक्ट में भी इन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स मेंशन करे. जो 6 था सोशल साइंस का, उन्होंने उसके मार्क्स ही फिल अप नहीं किए. दिस इज द फॉर्म. आई विल फाइल द डिटेल रिप्लाई. दिखाइए दिखाइए। तो कंसिडर करिए ना, ही इज एलिजिबल फॉर दैट नाउ। मैंने इसमें इन्होंने अदरवाइज ही हैव बीन डिवाइडेड अर्लियर आपको ओनली. मार्कशीट सबमिट किया था इन्होंने, मार्कशीट सबमिट. फिर आपको नहीं देखना चाहिए? There are 2 बच्चे ने phases. छोड़ दिया एक को। मतलब देयर आर 2 No. phases. First क्या है? phase, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब दिस इज द फॉर्म्स फिल अप बाय द कैंडिडेट हाँ। जिसमें उसने सिर्फ उसके 5 सब्जेक्ट्स का मेंशन तो किया. आपको रिजेक्शन में ये लिखना था कि यू मतलब इसमें जो छठवां सब्जेक्ट कहाँ है, गोल है आपके पास है? मतलब दैट इज व्हाट आई एम सबमिटिंग. देयर आर 2 phases. हाँ। फर्स्ट जो होता है कंप्यूटर एग्जाम, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो होता है. क्लियरिंग दैट एंट्रेंस एग्जाम द कैंडिडेट यूज्ड टू अपीयर इन द सेकंड फेज. तो जो फर्स्ट क्लियरिंग एग्जाम होता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर? इट इज अ ऑनलाइन फॉर्म. हाँ। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है. हाँ, उसमें क्या देखा जाता है? एलिजिबिलिटी तो देखते होगे ना? मतलब इट इज अ कंप्यूटर. उसके बाद में जब Wait, स्क्रीनिंग होती है, ये एट द बड़ी टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, हाँ। तब द कैंडिडेट केम आपने स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि ही वाज हैविंग द 6 सब्जेक्ट आल्सो? No, my lord. In the when the document verification was made, हाँ। at that time it was pointed out that the candidate is not coming into the category. Therefore, he has been भाई व्हाट इज द, आपने लिखा कि ही इज नॉट हैविंग 45% मार्क्स। 45%. तो जब उसके मार्कशीट में ऑलरेडी छठवां सब्जेक्ट है, इट इज नॉट बीन एडेड सब्सिक्वेंटली, you could have taken into But consideration. social science is the compulsory subject which is to be taken. तो उसमें तो उन्होंने किया है ना, he has passed the examination. It is not the case that he If has you are not passed it. calculating the, if So you it are, is your mistake then. It is your mistake. Why didn't you take into consideration the 6 subject which is there in the mark sheet? well, we are taking 5 subjects. अरे, Well, kindly consider. We are आपका मतलब है कि आप सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट लेते हैं? कहाँ लिखा है ऐसा? in our subject advertised. wise नहीं लिखा। उसमें लिखा है अच्छा चलो 5 भी लेते हैं तब भी तो उसका 33% ईच सब्जेक्ट Each ऊपर है। subject में 33% हाँ, आ रहा है, agreed. हाँ। But
टोटल जो कैलकुलेशन होता है, इफ विल टेक अ सोशल साइंस एज विच इज अ कंपलसरी तो सब्जेक्ट, है ना इसमें सोशल साइंस? पर सोशल साइंस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो द एग्रीगेट इज नॉट 45%, मतलब इट्स 43%. कैसे? The candidate is not Lordship, coming to the इनका एक category. कैसे बताइए ना? As in Sanskrit, he has taken a Sanskrit in their language. तो संस्कृत में उसने 44 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं और सोशल साइंस में द कैंडिडेट्स आर ऑब्टेन 35 मार्क्स. और अगर हम इन नहीं, एक मिनट रुकना. हिंदी में 40 है, हिंदी में 40 है, इंग्लिश में इंग्लिश में 45 है, 43, 40 कितना है? 45, 45. 45 Lordship. संस्कृत में 40, हाँ मैथ्स में 40, हाँ साइंस में 60, हाँ. सोशल साइंस में 35. 35. ये सब. अच्छा, सो मैथमेटिक्स, साइंस तो एंड सोशल सोशल साइंस में आपका 33 के नीचे तो है. नहीं 35 है लॉर्डशिप, तो अरे 30 एग्रीगेट करोगे तो कितना आएगा? लॉर्डशिप पर ये 43%. टोटल सब्जेक्टों का नहीं करना है, सिर्फ हाँ. 5 सब्जेक्ट इज 45 और 6 सब्जेक्ट इज 33 नहीं, अबो. तो बेसिक सब्जेक्ट में सोशल साइंस भी तो आएगा. बेसिक है, इसमें तो वैसे भी साइंस को मानते हैं, सोशल साइंस है, इन्होंने ऐसे क्लियर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है अरे कि फिर सोशल साइंस. नहीं, वी विल नॉट गो इनटू दैट But- मेरिट्स. अगर इस आपका एग्रीगेट जो है इट इज नॉट 45, देन यू आर. लॉर्डशिप अगर पूरे सब्जेक्टों का अगर देखा तो 45 में भी कह रहा हूँ, बट लॉर्डशिप अगर इन्होंने 5 उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था कि एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट. लॉर्डशिप, तो बेसिक सब्जेक्ट में subject ऐसा आपने कुछ क्या-क्या क्लियर नहीं लिखा लॉर्डशिप एक कि मिनट। ये होने चाहिए. अरे होता भी तो आप बताइए क्या क्या आपका 5. मतलब 3 are the compulsory subjects as per the guideline of MP board only: mathematics, science and social science. साइंस, सोशल साइंस, ये 3 हुए हैं. 3. 5 चाहिए ना आपको? 5 चाहिए. उसके बाद में any 2 subjects by their choice also अगर हम लेते हैं तो भी the candidates नहीं लेते नहीं है. आप क्या लेते हैं ये बताइए. मतलब we have taken Hindi and English. हाँ? Hindi and English. हिंदी एंड इंग्लिश. ये सबके सभी कैंडिडेट्स का आपने यही किया है क्या? Yes, a lot of these 3 basic subjects are नहीं, ऑल द कैंडिडेट्स हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड ऑन दिस on यार्डस्टिक. these subjects only. हाँ? Yes, a lot. ओनली ऑन दिस. Yes, a lot. ठीक है. आई पास ऑर्डर्स. ठीक है. लॉर्डशिप अगर ये क्लियर रहता तो मैं अगर इसकी जगह दूसरी कैटेगरी में भर देता. अरे यार्डस्टिक ऑफ फिर आपका जो कैटेगरी होगा जो उनका यार्डस्टिक बना है, इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि कैसे उसको मार्किंग दी है. बट लॉर्डशिप ऐसा इसमें क्लियर है ही नहीं. तो मैं क्लियर कर दूंगा. लॉर्डशिप और प्लेस क्लियर Obliged. क्या करें. इसको हेड एंड रिजर्व कर रहे हैं. इसमें मैडम और यू हैव फाइल्ड एनी रिप्लाई और जस्ट यू हैव प्लेस्ड दिस पेपर ऑन रिकॉर्ड. I would like to file reply, but today only your WhatsApp has directed me to seek instruction. No, this is not the. मतलब If I have to write an order, I will not consider this. मतलब I paper. filed a detailed reply. हाँ, हाँ. 3 days time may be granted. Yes, yes. इसमें कर देना. इसको ओपनिंग डेज में ले लेते हैं. इसमें कर देना कि so and so for she क्या नाम है? आर के पंडा लॉर्डशिप. हाँ, इनका नाम लिख दीजिए एंड इनका मैडम का नाम लिख दीजिए फॉर द रिस्पोंडेंट. व्हाट्स योर नेम मैम? मेघा जैन. Megha Jain for the petition for the respondent. The case was listed today for seeking instructions from the respondents. It is the contention of the counsel for the respondent that the petitioner his candidature has been rejected by the respondents rightly, as he has not qualified 45% marks in 5 basic subjects. And according to the counsel for the respondent, the 5 basic subjects are math, science, social science, Hindi and English. Yes, sir. है ना? Let the said contention be filed by the respondents by filing a specific affidavit to the effect that this yardstick has been adopted in all the cases of the candidates who have participated for the post of Agniveer General Duty.